बनने के लिए कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी सिस्टम में इस तरह का मौका नहीं है। जो इंडस्ट्री का पावर है, वेलनेस इंडस्ट्री आगे कहां जाएंगे, वेलनेस इंडस्ट्री में कितना लोग मिलियनेयर बनेंगे, अमीर बनने का तरीका क्या है, एक ही आग है। अमीर बनने का इंडस्ट्री क्या है, एक ही आग है। अमीर बनने का सेक्टर क्या है, अमीर कितना किसने दुनिया देखा है। बहुत इंडस्ट्री में लोग बताता है यहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ ज्यादा लाभ है, यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन है, यहाँ ज्यादा ग्रोथ हो। मरुप यही है बहुत बड़ा वेलनेस रेवोल्यूशन। इसको एक झलक आपको दिखाएंगे। Proven natural products that people can use to feel better, lose weight, prevent disease, and become younger and stronger even as they grow older. The result? The wellness industry has become the hottest trend in the world today. And that's why world-renowned economist Paul Zane Pilzer, a multi-millionaire entrepreneur, professor, and the author of 8 best-selling books, wants to share his latest research with you. Wellness has skyrocketed from $200 billion in sales in 2002 to approximately $500 billion in 2007, and the meter is still running. By the year 2012, wellness will join the $2 trillion healthcare industry, the $1 trillion PC industry, and the $1.3 trillion food industry as the next $1 trillion industry in our economy. And yet, the majority of opportunities in wellness still await the individual entrepreneur. New management techniques and forms of business organization, like direct selling, can allow you even better technology than if you were part of a large corporation. This trend will continue for at least another decade. In my 2002 book, The Wellness Revolution, it was the shot heard around the world for the wellness industry. This book was the first to define wellness as an industry, linking hundreds of thousands of disparate service and product suppliers with a single cause. It showed like-minded scientists, fitness providers, business people, food manufacturers, restaurant owners, wellness product distributors, doctors, and so many others focused on disease prevention and anti-aging that they were part of a worldwide revolution, not just a lone iconoclast inside their chosen profession or industry. But so much has changed in the world economy, in technology, and in new legislation favoring the individual over the organization that I needed to write 2 new books, The New Wellness Revolution and The Next Millionaires. Since 2002, wellness has grown to a $500 billion industry. Over the past 5 years, millions of people have had their first wellness experience. They lost weight, got stronger, eliminated chronic disease, and so many other things that they previously thought couldn't happen to them. With this enormous 250% growth since 2002, the market and the business opportunity for wellness has greatly expanded. The opportunity has never been better for anyone to become an entrepreneur in the wellness industry, because millionaires, and particularly new millionaires who earn their fortunes in wellness, are the fastest growing minority in the United States and the developed world today. Due to fundamental changes in the world economy, in technology, and in new legislation favoring the individual over the organization, we're beginning a period of democratization of wealth that is unprecedented in history. But we are not taking from the rich and giving to the poor. We are creating new wealth in which everyone who chooses to can share. Today, more than 10 million U.S. households have a net worth of $1 million or more, and that's just the beginning. By 2016, there will be 20 million U.S. millionaire households. Each household represents approximately 2.5 people, meaning that 50 million Americans will soon live in a household with a net worth of $1 million or more. Millionaires are the fastest growing minority in the United States and the developed world today. And as people become millionaires or just increase their wealth on the way to becoming one, the most important thing they desire with their newfound wealth is wellness. The more people increase their wealth, the greater proportion of their income they spend on wellness. It makes perfect sense. As you start feeling better, having more energy, and living a longer life, you share with others and build wealth. And the more money you have when you're healthier and living, even work part-time until your business takes off.
I am so supportive of the direct selling industry today, mostly because it allows anyone to succeed without first having to pass through a gatekeeper who decides your future based on your past. And it also allows people to make their own decision to succeed and then to get the training they need from people who only succeed when they succeed. Direct selling works because one-to-one personal conversations are the best way to learn brand new information about a completely new product or way of doing something. The person who can teach or share with me new ways of doing things is one of the most important people in my life. The investment advisor who shows me tools to help me maximize my wealth. The wellness advisors who introduce me to a product that will stop the pain in my knees. These are the people whose services I value. I do business with people whose services might cost a bit more than what I might find today. Residual income is income that continues to flow after the work that created it has been completed. Income that is, in other words, residue remaining from the original effort. Not everyone is going to develop a significant piece of income-generating real estate, or not everyone is going to write a best-selling book, both of which can create residual income. But direct selling provides the opportunity open to anyone, regardless of background, specialized skills, or net worth, to create a significant residual income. In direct selling, the property that you develop is the network of friends, family, and acquaintances whose sales volume generates a commission to you, the creator of the network. Today, many direct selling businesses offer wellness products, scientifically engineered supplements, standardized nutritional products, and life-enhancing juices. The list goes on and on. Which is the best product for you? Look closely at the research. Look at the scientific studies, note the benefits, and then try to make an educated decision on which one to try. First, as a customer, and then जिंदा रहने है तो वेलनेस करना है अभी, नहीं तो मरेंगे। क्योंकि आपको इतना डाटा मिला, वो कौन है? अभी बातें किया, वो कौन है? स्टडी स्टडी एजुकेशन 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 ट्रेनिंग एजुकेशन ट्रेनिंग एजुकेशन ट्रेनिंग एजुकेशन ट्रेनिंग। देन मिलियनियर, देन ओनली मिलियनियर, बहुत मिलियनियर। नो एजुकेशन ट्रेनिंग आप मर जाएंगे। एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए आरबीसी यूनिवर्सिटी, आरबीसी यूनिवर्सिटी, वेलनेस यूनिवर्सिटी, वेलनेस ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, मिलियनियर बनने का यूनिवर्सिटी है। चिल्लाकर 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 चिल्लाना 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 चिल्लाना, ये हॉल हिलना, ये हॉल हिलना, वो मलेशिया तक जाना, वो चिल्लाना मलेशिया तक जाना। आप सभी को आग लगना, आप फायर अप होना, अमीर बनने का आग डॉक्टर ले उसको लिखाना, वो सबको जिंदा है। तुम जिंदा है तो गरीबी को तुम लड़ना है, तुम्हारा बाप नहीं लड़ना, तुम्हारा दादा नहीं लड़ना, तुम लड़ना है। तुम्हारे हाथ में है गरीबी के लड़ने का अधिकार, भगवान ने तुमको दिया है। अमीर बनने का हिम्मत है, तुम गरीबी से लड़ने को तैयार होना। जब तुम गरीबी से लड़ने को तैयार नहीं होगे, डीएक्सएन का कोई प्रोडक्ट आपको यूजफुल नहीं होंगे। कॉफी से आप गरीबी लड़ सकता है, चाय से गरीबी को लड़ सकता है। एक ही चीज होना, गरीबी को लड़ने का हिम्मत। गरीबी को लड़ने का हिम्मत को सिखाने के लिए ही आरबीसी पैदा हो गया। वो आरबीसी का हो गया। आरबीसी का मंत्र है गरीबी से लड़ो, आरबीसी का मंत्र है गरीबी से लड़ो, आरबीसी का तंत्र है गरीबी को हिम्मत से हटाओ। आरबीसी का सिस्टम में आप अमीर बनना है। आरबीसी आपको सिखाता है आप अमीर नहीं, नॉट ओनली आप अमीर बनना, आपको बच्चों को अमीरी को छोड़कर जाना। हिम्मत है नॉट ओनली आपका बच्चों को, आपका जनरेशन, आपका पोता पोती को ये अमीरी को छोड़कर जाना। मैं छोड़कर जाता हूं, मेरा पोता पोती को, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, मेरा जनरेशन में वसुपाल्स फैमिली में हजारों बरस आ गए तो वो गरीबी नहीं आएंगे, गरीबी नहीं आएंगे, गरीबी नहीं आएंगे। मेरा फ्यूचर जनरेशन, मैं मरने के बाद
100 बरस के बाद, 200 बरस के बाद, 300 बरस के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लाया है इंडिया में, वो कौन है? कौन है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में शुरू किया स्टील इंडस्ट्री में, कौन है? JRD टाटा। JRD टाटा अभी जिंदा है? कितना बरस हो गया? 100 बरस के ऊपर हो गया। 100 बरस के ऊपर, 100 years more। वो टाटा जनरेशन में 100 बरस, 100 बरस, 200 बरस से होते हो, उसका खान पान में गरीबी होंगे नहीं। इस तरह आप करने को तैयार है? वेलनेस इंडस्ट्री में लड़ो। आपके जीवन में आपका 100 वर्ष के बाद में जनरेशन में आपका फोटो लगाकर पूजा करेंगे। लिम्का फोटो को पूजा करने की तरह हमारा फोटो को, अबे आपको इसका फोटो क्यों डाला है? डॉक्टर लिम्का क्यों डाला है? वो पूजा करेंगे बाद में। अभी डॉक्टर लिम है, जिंदा है हमारे सामने, बाद में हम पूजा करेंगे। एक आदमी था डॉक्टर लिम्सियोजिन ने, लोगों को जीवन को बदलने को लड़ा, स्वास्थ्य के लिए बढ़ा, वेलनेस रेवोल्यूशन को लाया, गरीबी को हटाने को सिखाया, वन वर्ल्ड वन मार्केट का तरीका से। ये रिमेंबर होंगे या नहीं? दुनिया रिमेंबर होगी या नहीं? दुनिया एक दिन सोचेंगे या नहीं? वही आप लोग करना है। आज का दिन आपका लाइफ को बदलने के लिए समर्पित है। आग की तरह लीडर को और वही आगा आज 10 लाख लेने का रास्ते में है, महीने में 10 लाख। सिंपल कुर्ता पैजामा कुर्ता आदमी 10 लाख कमाए तो आप कोट बूट सूट डालकर कितना कमा सकते हैं? आप अमीर बनना है। आपका लाइफ के लिए मेरा लाइफ बलिदान है। जो मेरा बर्थडे है, मेरा कल का 27 दिसंबर है, वो दिन पवित्र दिन है। आपका लाइफ को बदले तो वो दिन साकार होंगे, आप बदले तो वो दिन क्रिएटिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे जब आप अमीर बनेंगे। आपका बेटा बेटी अमीर बनेंगे, आपका पोता पोती अमीर बनेंगे, आपका जायदाद इतना जायदाद होंगे उसको दूसरा जनरेशन को छोड़ कर जाएंगे। जब आप दूसरा जनरेशन को उसको छोड़ कर जाएंगे, हम खुशी से ये दुनिया को छोड़ेंगे। मरने के समय सभी हम मरना है एक दिन। मरने के समय हम सोचना है जब मरने के दिन आएंगे मैं क्या किया हूं, एटलीस्ट मेरा फैमिली को क्या किया, मेरा डिपेंडेंट को क्या किया, मेरा आसपास लोगों को क्या किया, मेरा समाज को क्या किया। उस दिन हमको शांति मिलना है, खुशी मिलना है। हम कुछ करके जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। वही है DXL, वही है सिस्टम। आज टाइम बहुत कम है, बहुत लीडर्स है, बहुत लोग हैं। हमारे प्यारे फाउंडर CEO डॉक्टर लिम्सियोजिन है, इतना दूर से हमारे लिए वो सभी कष्ट उठाकर आया है। ये मेरा प्रिविलेज है डॉक्टर लिम्सियोजिन को आज बुलाने के लिए। डॉक्टर लिम्सियोजिन बारे में कुछ भी बातें करने का अभी जरूरत नहीं, आपको मालूम है। ये तो कर्मवादी है, ये कर्म करने वाला है, दिन रात कर्म करने वाला है। वही है इंडिया का कल्चर, इंडिया का सिद्धांत, कर्म करो, फल को भगवान को छोड़ो। वो कर्मवादी मरने तक कर्म करते 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 जाने वाले लोग ये दुनिया को बदलने वाले लोग हैं। कर्मण्ये वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। वो रियली जो भगवत गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने जो बताया वो साकार
श्री कृष्ण परमात्मा का जो सिद्धांत को प्रूव करके दिखाने का एक आत्मा हमको मिला है ये दुनिया में, वो डॉक्टर लिंग सुजिन है। इसीलिए बहुत गर्व के साथ, बहुत घमंड के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत प्यार के साथ उसको मैं बुलाऊंगा स्टेज को। उसका डीएक्सन का ये यात्रा में डीएक्सन उसका लाइफ टाइम में कहाँ लेकर जाने वाला है। इसीलिए विद ऑल द थंडरिंग अप्लॉज इनवाइट डॉक्टर लिम सुजिन टू डिलीवर। In a big gathering, कल जो अपनी बड़ी गैदरिंग हुई, we say DXN is India, India is DXN. कल मैंने बताया था कि डीएक्सन इंडिया है और इंडिया ही डीएक्सन है। Yeah. I think many of you are there yesterday कल काफी लोग कल थे वहां पे मीटिंग में, because when DXN come to India, क्योंकि जब डीएक्सन इंडिया में आया था, then from India we spread throughout the whole world. इंडिया से ही पूरी दुनिया में वो फैला गया। Without India, बिना इंडिया के, there is no DXN in the world. बिना इंडिया के डीएक्सन नहीं है दुनिया में। So in a market there is always a joke. इसलिए मार्केट में हमेशा एक चुटकुला कहा जाता है, DXN is run by a group of Indian mafia. डीएक्सन को चलाने के लिए इंडियन माफिया होता है। You see in Malaysia, मलेशिया में जाके देखो, our PIC is Asis. हमारा पीआईसी वहां का है, उसका नाम है आशीष। Is a Malaysian Indian. वो मलेशियन इंडियन है। So when we come to India here, अभी इंडिया में अगर आओगे, okay, Rafiq is India. हमारा रफीक जी जो है वो इंडियन है। Then in Bangladesh, अगर आप बांग्लादेश में जाओ, also India. वापिस इंडियन। In Arabs, अरब में जाओ, Middle East, मिडिल ईस्ट, Salim also from India. सलीम जो है वो भी इंडियन है। Then we go for this Europe, यूरोप में जाओ, Libya देबिया जो है वो इंडियन है। from India. Now go to Africa, अभी अगर अफ्रीका में जाओगे, Jijit जिजित जो है also वो from भी India. वो भी इंडियन है। Then we go to America, और अगर अमेरिका जाओ, we go to Southern America, साउथ अमेरिका जाओ, Prajit प्रजीत जो है also India. वो भी इंडियन है। So DXN come to India, तो डीएक्सन इंडिया में आया था we send the India throughout the whole world. और फिर इंडियन ने ही उसको पूरी दुनिया में लेके गया। So DXN इसलिए डीएक्सन में is run by a group of Indian mafia ये चलाने वाला, जो डीएक्सन चलाने वाला इंडियन माफिया है, headed by a Chinese boss. लेकिन उसका जो बॉस है वो चाइनीज है। So this is the worst combination, ये पूरा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, but it's the best it is out. लेकिन ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन भी है। So DXN is India, India is DXN. डीएक्सन इंडिया है और इंडिया ही डीएक्सन है। In the year 2020, तो अगला साल जो 2020 आने वाला है, it will be an important year for DXN ये सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है डीएक्सन के लिए, because our factory in Sidipe is going to operate. क्योंकि सिद्दीपेट की जो हमारी फैक्ट्री है ये अभी शुरू होने वाली है। Sidipe, the capacity, if go for full capacity, 3 times the capacity of Malaysia. तो डीएक्सन की जो सिद्दीपेट की फैक्ट्री है वो उसकी फुल कैपेसिटी जब रन होगी वो 3 गुना जो मलेशिया की फैक्ट्री उससे ज्यादा होगी। India will become HQ of DXN. इंडिया हेडक्वार्टर्स बनेगा डीएक्सन का। There is DXN and India. यही चीज इंडिया में लाना है। And today my topic is DXN and the world. और आज मेरा टॉपिक है डीएक्सन और दुनिया। Dunia. Okay. So the world is the same thing, you know. ये दुनिया एक जैसी ही है। Now we come from India, जब हम इंडिया में आते हैं, we spread throughout the whole world, पूरी दुनिया में फैले then they keep on spreading. और फिर भी फैलते जा रहे हैं।
I just come back from Las Vegas अभी अभी मैं जस्ट लास वेगस से आया हूँ together with मेरे Rajesh. साथ थे। Yeah. So we went there. हम लोग वहाँ चले गए So we gathered about 300 leaders, no, from North and South America. और 300 लीडर्स जो थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका से आए थे वहाँ पे So that time I'm also wearing this kimono तभी मैंने वहाँ पे भी ये किमोनो पहना था because we launched Sunya. क्योंकि वहाँ पे भी हमने शून्य लॉन्च किया Yeah, they are very happy. वो बहुत खुश थे Then everybody practicing. सब लोग प्रैक्टिस कर रहे Then they asked me, Dr. Lim, फिर उन्होंने पूछा मुझसे डॉक्टर लिम do you invented Sunya? क्या आपने ये शून्य इन्वेंट किया No, Sunya is not invented by me, you know. मैंने बोला नहीं मैंने नहीं इन्वेंट किया Sunya. ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे But in Malaysia, the Nepali go to stage. बट जब मलेशिया में नेपाली स्टेज पे जाते हैं You say, do you know why Nepali are so happy? आपको पता है नेपाली क्यों खुश होते हैं ऐसे कहते हैं वो Why Nepali is so peaceful? इतने शांत क्यों है नेपाली पता है Because Buddha is Nepali. बिकॉज बुद्धा जो है वो नेपाली है We don't care whether he's Nepali, Indian, doesn't matter. हमें कुछ लेना देना नहीं कि बुद्धा नेपाली है इंडियन है कुछ है During that time, Nepal is not there, India is not there, you know. उस जमाने में नेपाल इंडिया ये नहीं था Yeah. So Buddha say our body is a mud. बुद्धा ने कहा है कि ये जो शरीर है ये मट्टी है We do not worship the physical body of Buddha. हम बुद्धा के फिजिकल बॉडी यानी शरीर की पूजा नहीं करते The body is a mud, huh? वो एक कीचड़ है But the teaching is a lotus. लेकिन उस कीचड़ में एक जो सीख होती है वो कमल की तरह होती है Look at the lotus. आप कीचड़ को मत देखिए कमल को देखिए Don't look at the mud. कीचड़ को मत देखिए When I am teaching Sunya in Siddipet, जब मैं शून्य सिखा रहा था सिटीपेट में many of the students come and touch my feet, you know. काफी लोग आके मेरे पैर छूते हैं स्टूडेंट्स Do respect to me, क्यों मुझे आदर करते हैं इसीलिए and I'm going to ban it. अभी मैं उसको बैन करने वाला हूँ The respect should not pay to me. क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ मुझे रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है So we are the mud. क्योंकि मैं कीचड़ हूँ Nothing to be respected of. मेरे में कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है जो मुझे आप इतना इज्जत दो But the teaching, लेकिन मेरी सीख the practice. मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ Okay, so from now we spread Sunya throughout the whole world. अभी हम यहाँ से शून्य को पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं Our first Sunya meeting is in this Czech, इन स्लोवाकिया in Slovakia. हमारी पहली जो शून्य मीटिंग थी वो स्लोवाकिया में थी यूरोप में Actually, the one is by accident. I wanted to come to India. वो एक्सीडेंटली हो गया मुझे तो इंडिया में ही आना था I transit in Czechoslovakia. लेकिन मुझे ट्रांजिट स्लोवाकिया करना पड़ा So they know that I want to come to India to initiate the Sunya. तो उनको पता था कि मैं इंडिया में आने वाला हूँ कि शून्य का इनिशिएशन करने के लिए So we have the first what do you call? We have the first session in Czechoslovakia. इस तभी हमारा फर्स्ट सेशन जो शून्य का वो स्लोवाकिया में शुरू हुआ One of them from Belgium, I think. हाँ एक जन जो था बेल्जियम से He said he want to organize 200 people to come to India. उसने कहा कि मुझे 200 लोगों को लेके आना है इंडिया में Why India? इंडिया क्यों But India is a source of Sunya. क्योंकि इंडिया ही है जो जहाँ से शून्य का सोर्स हुआ है So शुरुआत now हुई। DXN we spread throughout the whole world. अब DXN पूरी दुनिया में फैला हुआ है We are going to make India the HQ of DXN. और इंडिया को हम हेडक्वार्टर्स बनाएंगे DXN का A lot of people will come to India. बहुत सारी दुनिया के सभी लोग इंडिया आएंगे Yeah, of course a lot of Indians also go to the world. और इंडिया के काफी लोग भी अभी पूरी दुनिया में जाएंगे Yeah, so one world, one family. तो वन वर्ल्ड वन फैमिली Yeah, एक yeah. दुनिया एक परिवार Now, 2020, many things we are going to do. ये आने वाले साल 2020 में काफी चीजें हम करने वाले हैं The main purpose that we wear kimono, ये जो उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्य इस किमोनो पहनने का there is a reason, you know. इसके पीछे एक कारण है We don't wear it for fashion. हम लोग कोई फैशन के लिए नहीं पहन रहे इसको We don't wear it for fun, you know. कोई मस्ती मजाक के लिए नहीं पहने हैं Because in India, क्योंकि इंडिया में for the past 10 years, पिछले 10 साल से there are 300,000 farmers committed suicide. 300,000 लोगों जो किसान हैं उन्होंने आत्महत्या की है And many of them are cotton farmers. और उसमें से काफी प्रतिशत जो लोग थे वो किसान वो रुई की खेती करने वाले थे Cotton is a very difficult plant. ये जो रुई है ये अलग टाइप का प्लांट है In India, many areas you don't have enough rain. काफी एरिया इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती है Cotton is the only plant that you can plant. वहाँ पे सिर्फ रुई ही की खेती की जा सकती है But the problem with cotton, लेकिन जो रुई का प्रॉब्लम है no rain, no crop. बारिश नहीं तो खेती में कोई फसल नहीं
too much rain coming also, the crop also destroyed. अगर बाई चांस बहुत ज्यादा बारिश होगी तो पूरी खेती खराब। So if one crop fail, अगर एक जो फसल अगर फेल होगी, खराब होगी, the farmer take 5 to 6 years to recover back. तो उसके ऊपर का जो कर्ज पूरा करने के लिए उसको 5 से 6 साल लगेंगे। If 2 crop fails, अगर 2 उसकी फसल खराब होगी, they'll be end up for one whole life. पूरी जिंदगी के लिए वो कर्जे में डूबे रहेंगे। If 3 crop fails, अगर 3 क्रॉप उनके फेल होगी, 3 फसलें फेल होगी, they commit suicide. फिर और कोई तरीका नहीं, आत्महत्या। So what should we do now? तब ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? So we are going to encourage cotton products. हम उन जो खेती करने वाले हैं रुई की, उनको मदद करने वाले, उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग आगे प्रमोट करने वाले। In future, we are not going to use this flower bouquet. हम ये जो गले में फ्रेश फ्लावर डालते हैं वो भी नहीं यूज करेंगे। We want to use a cotton flower. हम उस रुई से बने हुए मालाएं बनाएंगे, रुई से बनी हुई फ्लावर बनाएंगे। The kimono become a DXN product. ये जो किमोनो है, ये जो रुई से बना हुआ है, ये DXN प्रोडक्ट बन गया। We give SV, PV. हम उसके साथ SV और PV भी दे रहे हैं। Then every kimono, और ये हर किमोनो के साथ throughout the whole world, पूरी दुनिया में कहीं भी we are going to take out $10. हर किमोनो के पीछे से $10 हम अलग से निकालने वाले हैं। 700 rupees. या ऑलमोस्ट 700 रुपया। Now in India alone, इंडिया में अकेले ही we are going to sell 10,000 kimono now. 10,000 किमोनो हम लोग बेचने वाले हैं। That means we have raised 100,000 for the farmers. इसलिए सोच लो हमने कितना $1,000 ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं फार्मर्स के लिए। From India, इंडिया से we are going to get many farm products बहुत सारे जो खेती के उत्पाद होते हैं वो हम लेके आने वाले हैं and sell throughout the whole world. और पूरी दुनिया में बेचने वाले हैं। You see, last time we are selling coffee. देखो पिछली बार हम बेच रहे थे कॉफी। When I go to Philippines, जब मैं फिलीपींस गया था, the health food fair, the nobody wanted to buy health food. जो सेहत की फूड सप्लीमेंट होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं थे, फेल हो रहे थे। So I asked the member to write now what do they drink. तब मैंने मेंबर से पूछा था, आप बताओ आप लोग क्या पीते क्या हो? And use this money to buy DXN coffee. तो उस जो पीने वाले पैसे हैं जो आप खर्चा करते हो वो आप DXN प्रोडक्ट खरीदने में डालो। You say cheers, drink और- coffee so become millionaire. फिर आप चीयर्स, सिर्फ कॉफी पी के भी आप मिलियनेयर बन सकते हो। So in the future, तो आने वाले भविष्य में I'm going to sell you breakfast. फिर मैं आपको नाश्ता बेचने वाला हूँ, We're going to sell you lunch. मैं आपको दोपहर का लंच बेचने वाला हूँ। So you list down what you eat in the family. फिर मैं आपको पूछ, आप लिस्ट करो क्या क्या खाते हो सुबह दोपहर शाम को आपके फैमिली में। Use this money to buy DXN food. वो पैसे आप DXN में डालो, उसी से आप वहाँ खरीदो और खाना खाओ। So taking lunch to become millionaire. आप खाना खाते खाते मिलियनेयर बन जाओगे। The first thing we are going to do is the millet. पहली शुरुआत हम करने वाले धान से। When I go to China, जब मैं चाइना के जाता हूँ, millet is double the price of rice. जो है यहाँ का जो धान है, यहाँ का जो वो राइस से भी 2 गुना ज्यादा महंगा बिकता है वहाँ पे। When Chinese become sick, जब चाइनीज लोग बीमार पड़ते हैं, then they boil the millet porridge, हाँ तो millet kanji. धान की खिचड़ी टाइप बनाते हैं वो लोग, सूप टाइप, और फिर वो कीमत है वो राइस के आधी है। And we feed the millet to the cow. और यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो धान रहता है ये आदमी कम खाता है, गाय को ज्यादा खिलाता है। Now in India, और अभी इंडिया में the cow is very strong. इसीलिए गाय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आदमी कमजोर, People are very weak. और आदमी कमजोर है We they eat white rice. क्योंकि वो लोग सिर्फ राइस खाते हैं। So now लेकिन अभी we are going to buy millet from the farmers. हम खेती करने वाले जो धान की खेती करें उनके पास से धान खरीदने वाले हैं। Then we will roast the millet. हम उसको थोड़ा सेकेंगे, So next time we put the hot water, then फिर become kanji. सिर्फ पानी डालना है आपको और कंजी बोल के पीना है आपको। Yeah. Your wife will become very happy. आपकी बीवियां बहुत खुश हो जाएगी But it's easy to cook food. क्योंकि काम कम हो गया, किचन वाला काम कम हो गया। Then we can bring it along with us, no? और Traveling. फिर- We can bring along with us. हाँ, उसके साथ हमारे लोग बहुत आ सकते हैं। Put in hot water. हाँ, फिर उसमें से पानी डालना है। So next time we'll come up with mushroom. फिर मशरूम भी लेके आएंगे, We come up with this tofu, हाँ। this soya सोया और सोया से बने हुए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। Okay, then you become have one meal. फिर आपका एक खाना हो जाएगा वो, Very good meal. और अच्छा वाला खाना हो Yeah, जाएगा, yeah. And you become millionaire. और पैसा भी कमाओगे, मिलियनेयर भी बन Yeah, जाओगे। yeah.
So we need to buy from the farmers now. हमको इन जो खेती करने वाले किसान हैं उनसे खरीदना हमको जरूरी है, India farmer are not in very good shape. क्योंकि इंडिया में जो किसान है उसकी हालत अच्छी नहीं है। Recently the onion is very costly, you know. अब मुझे पता चला कि अभी हाल ही में प्याज बहुत महंगा हो गया You get 200 rupees, और 200 से 300 रुपए किलो हो गया है। but the farmer get only 7 rupees, 10 rupees. पर जो खेती करने किसान है उसको मिला 7 रुपया 8 रुपया। So now now DXN going to do? अब DXN क्या करने वाला है? Now this year we are going to get 15,000 people to Siddipet. ये 2020 में हम 15,000 लोग एक साथ जुड़ने वाले हैं सिद्दीपेट में। 2,000 or 3,000 farmer will join us. 2 से 3,000 जो किसान है हमको ज्वाइन करने वाले हैं। So directly from the farm उनके जो खेतों में से आने वाली जो भी उपज होगी to the table. वो टेबल तक आएगी। I mean the farmer directly supply to us. अभी जो किसान होता है वो डायरेक्टली हमको सप्लाई करेगा कंपनी को, We buy from them हम डायरेक्टली उनसे खरीदेंगे with SV and PV. विद एसवी और पीवी। Good. अच्छा है। Then we are going to export from India. फिर इंडिया से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। India, you have rainbow of millet. इंडिया में जो धान है वो रंग बिरंगी है, पूरा 70 जो ये होता है रेनबो के कलर के है। From all the color of rainbow. जितने भी कलर होते हैं ना इंद्रधनुष के, वो सब कलर के आपको धान मिलेंगे इंडिया में। You have red millet, लाल कलर का धान, orange millet, ऑरेंज कलर का, yellow, पीला, green, हरा, velvet, वेलवेट, any color you may need. नीला, पीला, जो भी कलर चाहिए वो सब मिल जाएगा। But you feed it to the cow. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, वो धान जो रंग बिरंगी वो गाय को खिलाई जाती है। You feed the leaf of millet to the cow. आप जो उसके जो पत्ते होते हैं धान के वो भी आप गाय को खिलाते हो। Dr. Clarence has told me डॉक्टर क्लेरेंस ने मुझे कहा है from the sorghum जो 100 ग्राम से millet, ज्वार जो बोलते हैं, the leaf is very nutritious, ज्वार की जो पत्ते होते हैं वो उसमें भी काफी न्यूट्रिशन है, but we don't eat leaf. लेकिन हम वो नहीं खाते ना, We let the cow eat the leaf. हम गाय को खाने देते हैं। We eat the millet. हम धान खाएंगे। No, we are serious now. हम सीरियस है इस मामले No, में। if coffee can make us rich,